अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में तो हमने इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो फिर हमने वहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमने डिराइव की, ठीक है। और फिर ये बता दिया जो इसकी पाथ है वो है पैराबोलिक पाथ जो ये फॉलो करता है। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट terms which are related with the projectile motion, angular projectile motion, like जैसे कि time of flight, Number 2 is maximum height attained by the projectile. Number 3 is the horizontal range. Number 4 is the instantaneous velocity of the projectile during its flight. Okay, these are certain important terms which are related with the angular projectile motion. Now we will discuss these terms one by one. Okay, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये. Now for that we will consider here two rectangular coordinate system, two perpendicular axes as rectangular coordinate system, x axis and y axis. Suppose this is x-axis and this is y-axis. The two perpendicular axes meet each other at a point O, which is called origin of the coordinate axis. And now assume that this horizontal axis is on the ground. Okay? It represents the surface of ground here. This is ground. And now we will take an object. Okay, we will place it here. तो यहाँ से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे with some initial velocity. As you know that when we fire an object with some initial velocity at certain angle with the horizontal direction, ठीक है, what will happen? It follows a parabolic path like this. This is the parabolic path. Okay, here the velocity with which we have projected is represented by this arrow. U is the initial velocity. जिससे हमने इसको initially project किया. We have project the object with initial velocity U at an angle, suppose theta, with the horizontal direction. Okay, as it is obvious here that the object फर्स्ट मूव्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है, ऊपर भी जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, आगे भी बढ़ रहा है. देन फाइनली हियर विच एट द हाईएस्ट पॉइंट, सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लास्ट टाइम मैंने बी से दिखाया था ये शायद, तो बी से ही दिखाएंगे. देन फाइनली यहां से ये फिर गिरना शुरू करता है. देन इट फॉल्स डाउन एंड फाइनली हिट्स द ग्राउंड हियर एट अ पॉइंट सपोज ए. इज दिस क्लियर? ओके, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, ये जो ऑब्जेक्ट है इट हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वर्टिकल वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल हैज बीन प्रोजेक्टेड इनिशियली. इज दिस क्लियर? जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया उसी वेलोसिटी ये हिट करेगा यहाँ पे, ठीक है. तो फिर हमने ये भी देखा कि जब हम इसकी मोशन स्टडी करते हैं वो फर्स्ट स्टडी इट्स मोशन इन एक्स डायरेक्शन, देन इन वाई डायरेक्शन. फॉर दैट वी हैव रिजॉल्व्ड दिस velocity vector into two components. एक component यहाँ से आएगा, second component यहाँ से आएगा. This is the कौन सा component होगा? Base component in x direction, horizontal component represented by it is ux and is equal to u cos of theta. And this is the vertical component. It is represented by uy and is equal to sine of u sine of theta. Okay. Okay. ये सब कुछ चीजें
हमने पहले ही डिस्कस किए, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर. ओके, this is the velocity with which it covers the vertical distance, this is the velocity with which it covers the horizontal distance, ठीक है. And now first term is the time of flight. पहले हम time of flight डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Time of flight. So what is time of flight? It is the time taken by the projectile in going from the point of projection O to the point of projection to the point where it first hits the surface of Earth. From the point of projection O to the point where it first hits the ground. That is A. O से लेकर A तक इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना? That is called time of flight. या we can, it is represented by capital T. ठीक है, T से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. या in other words we can say it is the time, total time during which the projectile remains in air or remains in flight. ठीक है ना? इस टाइम के लिए ये हवा में रहता है, यानी कि we can say it remains in flight. ये फ्लाइट करता है. Is this clear you? Okay, this is what we call time of flight. Okay, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम बता दिया कि यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी से हमने इसको फायर किया. जब हम वर्टिकल मोशन सेपरेटली लेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से ले लेंगे. जब हम वर्टिकल मोशन अलग से ले लेंगे तो इट इज जस्ट लाइक कि हमने एक ऑब्जेक्ट फायर किया विद वेलोसिटी u y इक्वल टू u sin थीटा. इस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को फायर करेंगे. इन विच डायरेक्शन? इन वर्टिकल डायरेक्शन. ऐसे यहां से मैंने ऊपर इसको फायर किया, फिर ऊपर से फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर वहां पे फिर वापस अपनी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना? तो उस वक्त इसकी जो पाथ होगी वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, ठीक है ना? इसकी जो वर्टिकल मोशन, इट इज जस्ट लाइक वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी u sin थीटा, ठीक है. ओके, अब देखिए बेटा, जिस वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, एज नो दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, जो जिस वेलोसिटी हमने इसको फायर किया, ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी. एंड फाइनली एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 बनती है. एंड देन आफ्टर दैट ये गिरना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. तो इसमें फिर से डेवलप हो जाएगी, इंट्रोड्यूस हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी इन द रिवर्स डायरेक्शन. एंड देन फाइनली इट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट ए विद द सेम वेलोसिटी. किस वेलोसिटी? u sin थीटा, विद द सेम वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है. जिस वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उसी वर्टिकल वेलोसिटी ये ग्राउंड को हिट करेगा एट पॉइंट ए. देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट. क्या है? प्रोवाइड दैट द पॉइंट ए एंड o lie on the same horizontal plane. Is this clear? A must be in the same plane with O. Is this clear? With same horizontal plane with O. Is this clear? O, point of projection and point where it hits, both must lie on the same horizontal plane. ठीक है? जब ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे तभी जाके जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पे ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ये हिट करेगा यहाँ पे पॉइंट ए पर. याद रखना. तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी u sin थीटा, उसी वेलोसिटी से हिट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहां पे भी यही वेलोसिटी होगी u sin ऑफ थीटा. इज दिस क्लियर? एंड नाउ अभी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन एब्सेंस ऑफ एनी अपोजिंग और सपोर्टिंग फोर्स, व्हाट विल हैपन टू दिस वेलोसिटी? इट रिमेन्स कांस्टेंट, जो लास्ट टाइम मैंने बता दिया. तो यहाँ पे ये इस तरह से वेलोसिटी कंपोनेंट है. तो अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में. तो यहाँ से ये इतना बड़ा है तो यहाँ से कम हो जाएगा, ये कम हो गया. फिर यहाँ पे दिखाएंगे ये सेम रहेगा, ये छोटा हो गया. तो यहाँ पे दिस विल बिकम 0, ये होगा बराबर. तो यहां से फिर इंक्रीज होना शुरू करेगा ये नीचे की तरफ, ठीक है. यहां से और इंक्रीज हो गया, जहां ये सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो यहाँ पे फिर वापस मैक्सिमम हो गया, तो यहां से ये सेम रहेगा जो एक्स कंपोनेंट. इज दिस क्लियर? ये लास्ट टाइम हमने दिखा दिया. अब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ मोशन, क्योंकि हमें टोटल टाइम दिखाना है, कितना टाइम लगेगा इसको इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए, तो हम ले लेंगे
या हम हॉरिजॉन्टल मोशन लिख सकते हैं या वर्टिकल मोशन, ठीक है ना. इट इज बेटर टू कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to A, ठीक है. ओके, कंसिडर vertical motion from O to A, from O to A, vertical motion. Now equation of motion यहाँ पे we know the position time relation. So what is the position time relation? It is y minus y naught equal to u x, या दूसरे रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं. अगर वही करेंगे तो ये किताब में मिलेगा इस तरह से, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रिलेशन करेंगे. We know the velocity time relation. क्या है velocity time relation in vertical direction? It is Vy minus Uy equal Ayt. Is this clear? Keep it number 1. Here, what is Vy? It's the final velocity क्योंकि हम मोशन ले रहे हैं O to A. ठीक है ना. V is the final velocity, use the initial velocity. What is final velocity in vertical direction? It is u sin theta. Is this clear? तो यहाँ पे u sin theta हम लिखेंगे. Vy is equal to u sin theta. So what is uy? Initial velocity. Initial velocity भी वही है, u sin theta. But there is one difference. ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, अपोजिट. तो ये यहाँ पे ये आएगा नेगेटिव, ठीक है. वी वाई नीचे की तरफ ये माइनस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा. दिस इज द डिफरेंस. ओके, दिस इज यू वाई. इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी अगर कंपेयर करेंगे. दिस इज क्लियर. तो इसी तरह से ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन. ए वाई इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है ना. यहां से जी नेगेटिव है, ये आएगा माइनस क्योंकि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ओके, एंड नाउ ये माइनस जी आएगा यहाँ पे, एंड टी जो टाइम है इसको लगेगा O to A तक, दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t. देयरफॉर द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स u sin थीटा, ये आएगा माइनस एंड माइनस uy. What is uy? Uy is u sin theta is equal to ay is minus g. T is the total time taken, that is time of flight. Okay, ये minus u sin theta ये बनेगा minus twice u sin theta is equal to minus gt. Minus minus cancels, therefore the expression for the time of flight g यहाँ पे नीचे जाएगा. You will get twice u sin theta divided by g. This is the expression for the time of flight. ठीक है. This shows that the time of flight depends upon what? The initial vertical velocity. Initial vertical velocity. U sin theta. Only the initial vertical velocity पे. ठीक है. Initial vertical velocity पे. A component, vertical component of the velocity. U sin theta. As is clear to you, उसी पे depend कर रहा है. Yeah, we can say it depends upon the initial velocity of projection and the angle of projection. Is this clear? Okay, g is constant here. This is what we call time of flight. ठीक है ना. इसका एक स्पेशल केस ले लेंगे. अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो है एक्सप्रेशन वो है ट्वाइस u sin theta divided by g. This is the expression. Okay, and now there is a special case for it for maximum time of flight. ठीक है ना. या वो कैसे इस तरह से लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा फॉर गिवन वेलोसिटी. ठीक है, ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन the time
of flight is maximum. कब मैक्सिमम होगा? g is its constant, 2 is the number, ये चेंज नहीं होगा. u is initial velocity, ये भी हमने कांस्टेंट रखा फॉर अ गिवन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये अब थीटा हम डिफरेंट ले सकते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम थीटा जो थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उसके लिए कोई कंडीशन हमने नहीं रखी है. तो ये किस एंगल पे अब ये मैक्सिमम होगा? जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा. इफ साइन थीटा इज maximum. So what is maximum value of sin theta? It is 1. So at what angle sin theta is 1? It is sine of 90. Sin cancels, therefore theta is pi by 2, means 90 degree. So it means that when a projectile is projected at right angles, ठीक है ना, यहाँ पे, not at certain angle. एंगल ये जो थीटा है, ये अगर 90 के बराबर होगा, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा मैक्सिमम. इतना ही नहीं, उस वक्त जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी, नॉट टू डायमेंशनल मोशन. Has this clear to you? So projectile remains in air for a longer time when it is projected vertically upwards at right angles. This is very important. ठीक है ना? जितना ही फिर हम एंगल डिक्रीज करते जाएंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा. Is this clear? Okay. ये स्पेशल केस था इसमें, वो मैंने बता दिया. Now we will discuss the second term. The second term is maximum height attained by the projectile. या maximum height चार्ट में लिखेंगे. Maximum height attained by the projectile. Maximum height, as you know that maximum height, जब हम इसको यहाँ से फायर करते हैं, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो फाइनली इट रीच दैट पॉइंट बी. यहां तक इसने एक मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है. उसके बाद ये डिस्टेंस फिर डिक्रीज होनी शुरू होती है. तो यहां पे तो इसकी दूरी, इस पॉइंट बी की दूरी क्या है? मैक्सिमम फ्रॉम द ग्राउंड. इज दिस क्लियर टू यू? तो यही डिस्टेंस जो होगी इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच और स्मॉल एच. चलिए स्मॉल एच से दिखाएंगे. सो एच, व्हाट इज एच? एच इज द मैक्सिमम हाइट attained by the projectile. ठीक है ना? Maximum height is the h is the maximum height. Yeah, we can say maximum height is the maximum vertical distance. Maximum vertical distance attained by the projectile in upward direction. ठीक है? Maximum vertical distance covered by the projectile in upward direction. ठीक है? अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की है? दैट इज व्हाट वी कॉल मैक्सिमम हाइट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, स्मॉल एच और कैपिटल एच. स्मॉल एच से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इज दिस क्लियर टू? दिस इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. इज दिस क्लियर? ये एच से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. तो हमें एच के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, तो हम ले लेंगे मोशन फ्रॉम ओ टू बी. ओ टू ए लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से हमें एच नहीं मिलेगा. तो यहाँ अगर हम ओ टू बी ले लेंगे, वहां से एच हम निकाल सकते हैं, या अगर बी टू ए ले लेंगे तो वहां से भी हम एच निकाल सकते हैं. इज दिस क्लियर? तो ओ टू बी अगर ले लेंगे तो इनिशियल जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, हमें वर्टिकल डिस्टेंस से मुराद है, इनिशियल होगी वो 0, फाइनल होगी एच. ठीक है? अगर हम बी टू ए ले लेंगे तो इनिशियल वर्टिकल डिस्टेंस होगी एच, फाइनल होगी यहाँ पे 0. दिस इज द डिफरेंस. ये वाला पोर्शन भी ले सकते हैं, ये वाला पोर्शन भी ले सकते हैं. ठीक है? और एक चीज मैं बता दूं, जब ये बॉडी ऊपर जा रही है अप टू बी, ठीक है ना, यहां से ऊपर जा रही है, इसके बाद ये नीचे जा रही है, इस ऊपर जाने को हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज असेंडिंग. ठीक है ना? देन बियॉन्ड बी इट इज डिसेंडिंग.
जो इसको टाइम लगेगा फ्रॉम ओ टू बी, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। जो इसको टाइम लगेगा बी से ए तक जाने में, इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, इज दिस क्लियर? ड्यू टू सिमेट्री टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, इज दिस क्लियर टू यू? वो होता है हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, इज दिस क्लियर? ओके, अब एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे एच के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो हम ले लेंगे वर्टिकल मोशन, कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू बी, ओ टू बी ले सकते हैं या बी टू ए ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन या पोजिशन टाइम रिलेशन? पोजिशन टाइम relation. Position time relation is in vertical direction y minus y naught is equal to u y t plus half of a y t square. Is this clear? तो इससे हम क्या कर सकते हैं? We can determine the okay. यह है पोजिशन टाइम रिलेशन। इससे भी हम ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम हाइट। तो किताब में मिलेगा, मगर ये थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने में। ये तो देख सकते हो, दूसरी रिलेशन भी हमारे पास है, उससे भी हम कर सकते हैं। द सेकंड रिलेशन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से भी हम ये देखिए एक्सप्रेशन डेराइव कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम हाइट। ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन? द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज v y square minus u y square is equal to twice a y s. S is the displacement, the final minus initial, y minus y naught. Is this clear? Okay. Here, पहले देखते हैं. What is Vy? Vy is the final velocity. So, what is the final velocity in the vertical direction? It is u sin theta, as you know that. जैसे कि पहले मैंने बता दिया, जिस vertical velocity ऊपर जाएगा, उसी vertical velocity hit करेगा surface of the earth या ground. The condition, necessary condition for that, ये जो A और O है, they must lie on the same horizontal plane. This is very important. So Vy के बदले Vy is equal to u sin of theta. Okay. What is Uy? Sorry, यहाँ से हमने consider vertical motion from O to B. हमें O to B लेना है, not O to A. तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, याद नहीं रहा. हमें लेनी है रिलेशन फ्रॉम O to B. O to B. अब यहाँ पे B पे हमें देखना फाइनल वेलोसिटी क्या है. Here, what is the final velocity at point B? Vy. It is the vertical velocity decreases, and then at point B, as you know that it becomes 0. तो यहाँ पे 0 आएगा Vy. So what is Uy? ठीक है? Uy is the initial vertical velocity. Initial vertical velocity is u sin of theta. Okay? What is Ay? Ay is acceleration to gravity. It is minus g, as you know. What is y here? Y is the final position, final vertical distance. The final vertical distance at point B is h. Is this clear? Okay. What is y naught? Y naught is the initial position. It is 0. Put this value in this equation. What will you get? Vy square. Vy is 0, तो ये 0 आएगा. Minus uy is u square sin square theta. Okay? Is equal to twice ay. 2 आएगा यहाँ पे. And ay is minus g. And to y, what is y? Y is the h. And y naught is 0. Okay? इसको सिंप्लीफाई कीजिए. You will get u square sin square theta is equal to minus twice gh. Okay? Minus minus cancels. Therefore, the expression for the height is u square sin square theta divided by 2g. This is expression for the
maximum height attained by the projectile. As escalated.